Hello viewers, I Sushant Sahu, teacher in social studies. Welcome you all to class 7, that is civics, chapter number 1. The first chapter it is on equality and it is part 2. So let us start this portion. So here the first point we'll study today, equal right to vote. It means all the citizens, we are talking about our country India, all the citizens they have equal rights, same right to cast vote. It means to choose their leader. इसका मतलब ये है सारे जो कि हमारे नागरिक हैं जिनका एज जो है उम्र जो है 18 साल या उससे ज़्यादा हो उनको वोट देने का अधिकार है. दैट इज इक्वल राइट टू वोट. In a democratic country like India, adults, here adults means 18 years or 18 years plus, irrespective of religion, caste, education, status, or place of birth, are given the right to vote under universal adult franchise. Universal adult franchise जो है, this is the we can say that the parameter to identify a citizen in our country. So what is the parameter? A person should have at least 18 years or 18 years more. Again, let us understand what is the meaning of universal adult franchise. The right to vote to be given to all citizens of the country. हमारे देश का सारे नागरिक लोगों को वोट देने का अधिकार है. There should not be bifurcated on the grounds of religion, culture or gender. There will not be any discrimination. There will not be any partiality on the basis of religion मतलब धर्म के नज़रिए में, कल्चर के नज़रिया में और जेंडर के स्थिति में. तो ये जो सब कैटेगरी है इस कैटेगरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट टू वोट. It is over. Next, we'll move towards the caste system in the society in present day also. Nowadays the caste system, it has been some extent it has been vanished slowly and gradually, but somehow in some of the places of our country it is still existed. ये हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जो कास्ट सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं. द अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये जो डिवीज़न है, ये जो ट्रायंगल है, ऐसे ही एक्सप्लेन किया गया है. सबसे ऊपर वाला जो कास्ट है, द हाईएस्ट कास्ट, इट इज़ ब्राह्मण. दे आर कॉल्ड प्रीस्ट्स एंड स्कॉलर. ओके. देन नेक्स्ट टू ब्राह्मण दे आर क्षत्रिय. ओके, क्षत्रिय दे आर रूलर और वॉरियर. देन थर्ड पोजिशन वैश्य, दे आर मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिसन, जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं. देन नेक्स्ट टू वैश्य, the fourth position Shudra, those who are farmers, laborers, this section of people. So these members, they are all four sections. The lowest one, untouchables. The lowest one, untouchables. It means they are not touched by all the above four classes. Okay, these four classes. You see, the topmost classes, they are more powerful, the most powerful people in the society. Then in this ladder, the lowest one, untouchables, those who are tribals, those who are backward classes on the basis of special you can say caste, better you can say scheduled caste, scheduled tribe. These discrimination, it is there still in some of parts of our country, but it is a प्रॉब्लम, इट इज़ अ हर्डल फॉर द नेशनल प्रोग्रेस. हमारे देश का डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक चैलेंज है. तो इसको हमको हटाना पड़ेगा. बिकॉज यू आर नाउ गेटिंग एजुकेशन, गुड एजुकेशन टू बी एजुकेटेड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कास्ट सिस्टम इन आवर सोसाइटी. लेट अस मूव टू द एरियाज इन विच ह्यूमन्स आर नॉट ट्रीटेड इक्वली. ऐसा कौन कौन सा एरिया है जिस जगह में लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है. पहला वाला हम कुछ देर से पहले डिस्कशन किए जो कि कास्ट है, क्योंकि अभी हमारे सोसाइटी में जो डिवीज़न है, कास्ट डिवीज़न हो गया है. एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, जनरल है. सो दीज आर द कास्ट सिस्टम. देन कलर, कोई भगवान तो बनाए हैं हम सबको, कोई दिखने के लिए थोड़ा फेयर है, कोई दिखने के लिए थोड़ा
ब्लैक जैसा है, तो ब्लैक वाइट ये जो कलर है लोगों का, इसको लेके भी डिस्क्रिमिनेशन दिखाई देता है। फिर रिलीजियन, जैसे कि हिंदुज़म, इस्लामिज़म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसको लेके भी बहुत सारे जगह में डिफरेंसेस देखने के लिए मिलता है, और वो एक दूसरे रिलीजन के आपस में लड़ाई करते हैं। फिर रेस, अगेन इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द कलर, वी कैन से द ब्लैक और वाइट पीपल। इट वाज स्पेसिफिकली, वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ साउथ अफ्रीका। गांधी जी जो गए थे, in that time also there was a great problem, a huge problem in South Africa. In our country also some extent it is there. Then gender it is related to male and female. So in the society, Indian society, it most part of our country it is understood or it is assumed, ये माना जाता है that the male section they are more educated, more powerful, more clever as compared to the female members, but it is not. Nowadays the female members, the women section of people, they were getting empowered. Women empowerment is increasing day by day. So these are the some of the categories in which they have been discriminated. All right, now let us go through the recognizing dignity. Dignity recognizing का मतलब ये होता है आइडेंटिफाई करना, और वी कैन से इसको परखना, रिकॉग्नाइज करना। क्या रिकॉग्नाइज करेंगे? डिग्निटी, जो कि हम कहते हैं सेल्फ रेस्पेक्ट। डिग्निटी मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट। तो पॉइंट 1 बताता है व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, देयर डिग्निटी इज वायोलेटेड, उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसका अवमानना, मतलब कोई वायोलेट कर रहा है, नहीं मान रहा है। तो डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी इज द राइट ऑफ ए पर्सन, किसी का, सबका एक राइट, अधिकार होता है टू बी वैल्यूड एंड रेस्पेक्टेड। ये सेल्फ रेस्पेक्ट को वैल्यू होना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए फॉर देयर ओन सेक एंड टू बी ट्रीटेड एथिकली, मतलब सारे लोगों का अपना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है एंड एवरीबडी शुड बी रेस्पेक्टेड ऑन दैट बेसिस। लेकिन एक जो हमारे सोसाइटी में इक्वालिटी जो है ये एग्जिस्ट है क्या? ये अभी भी हमारे सोसाइटी में है क्या? चलो देखते हैं। इन रियलिटी डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन रिच एंड पुअर, ये तो हमको मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस सबका हुआ होगा। रिच पुअर, गरीब और अमीर के बीच में कैसे डिफरेंस होता है। कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो रिजिड, अभी अभी हम पढ़े कास्ट सिस्टम के बारे में, वो कितना गंदा वाला है सिस्टम। दलित्स इन इंडिया एंड माइनॉरिटीज आर डिनाइड द राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी। तो दलित लोगों को, जो कि माइनॉरिटी है, जो कम लोग हैं, कम संख्या का पॉपुलेशन जो कैटेगरी का है, जो कि ट्राइबल है, उनको क्या होता है? राइट टू डिग्निटी एंड इक्वालिटी, ये भी कहीं कहीं जगह में ये उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो लोग भी मतलब जो इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है। ओके, नाउ इट इज़ an example has been given, a wonderful example, it is of a movie, इट इज़ ए फिल्म ऑफ 1975 का एक मूवी था, जिस मूवी का नाम था दीवार। उसमें क्या होता है? फिगर नंबर 1 देखो, इसमें फिगर नंबर 1 जो है, इसमें कुछ बच्चे वो जूता पॉलिश कर रहे हैं, कुछ साहब लोग जैसे कि खड़े हैं, उनका जूता पॉलिश कर रहे हैं। सेकेंड वाला पिक्चर में वो जूता पॉलिश करने के बाद वो जो लोग हैं, जो साहब दिख रहे हैं, वो पैसा फेंक देते हैं, मतलब वो बच्चों के ऊपर वो पैसा फेंक के देते हैं, लेकिन वो बच्चों क्या करते हैं? पैसा को रिसीव नहीं करते हैं। ओके, दे आर नॉट रिसीविंग द मनी थ्रोन एट देम। एंड इन द थर्ड पिक्चर, थर्ड फिगर, the same money again they give to the particular child with respect and the child is accepting. You see how beautifully the example has been given. Here point has also been mentioned in the 1975 film Diwar. A boy who works as a shoe shine refuses to pick up a coin thrown at him. उनके ऊपर जो फेंका हुआ कॉइन को रिसीव नहीं किया। He feels that there is dignity in the work that he does. वो फील करता है कि मैं जो काम किया हूँ उसमें मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट है, मैं मेहनत किया हूँ। It insists that his fee is given respectfully. इसका मतलब ये है उनको जो फी वो डिजर्व करता है उनको रेस्पेक्टफुली देना चाहिए। ओके, दिस इज ए ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ डिग्निटी। नेक्स्ट, आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 15 है उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन करते हैं। उसमें क्या बताया गया है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो कि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जो विभेदता, मतलब डिफरेंसेस, रिलीजन को लेके, रेस को लेके, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, जैसे कि हम कहते हैं जेंडर,
और प्लेस ऑफ बात कौन सा जगह में आप जन्म लिए हैं, तो इसको लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये हटा देना चाहिए। नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ टू बी सब्जेक्ट एनी डिजाबिलिटी, लियाबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन, कंडीशन। वो कौन कौन सा जगह में ये सब डिस्क्रिमिनेशन या पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। एक्सेस टू शॉप, दुकान में, पब्लिक दुकान, पब्लिक रेस्टोरेंट जो कि होटल कहते हैं हम, होटल्स भी लिखा है। पब्लिक इंटरटेनमेंट प्लेस जो कि सिनेमा हॉल, कोई पार्क, ओके, जो कि नेक्स्ट बी नंबर में बताया गया है। वेल जहाँ से पानी लेते हैं, टैंक्स, बाथिंग घाट जो पॉन्ड में नहाते हैं, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली। ये पूरा उस जगह में कोई भी मतलब किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक प्लेस है। पब्लिक का मतलब फॉर ऑल। पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स आर डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, क्योंकि ये जो फंड है, जो पैसा खर्चा किया जाता है, वो सबके लिए होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर क्लासेस का लोग उसको एंजॉय करेंगे और लोअर क्लासेस का लोग नहीं है, ऐसा नहीं है। तो एवरीबडी शुड एंजॉय दिस राइट्स। लेट अस गिव एन एग्जाम्पल कि कैसे कैसे लोगों को डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके एग्जाम्पल भी आपके किताब में हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ही इज a great Dalit writer. Okay, he has written an autobiography। उनके बारे में, उनके लाइफ हिस्ट्री के बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखे हैं, जो किताब का नाम है जूथान। ओके, सो वट एवर प्रॉब्लम्स ही हैज़ फेस्ड इन हिज लाइफ ही हैज़ एक्सप्लेन्ड। उनके ज़िंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस किए हैं उसमें लिखे हैं, उस किताब में लिखे हैं। sat on the floor and was made to sit too far from all। मतलब क्लासरूम में वो ज़मीन के ऊपर ही, मतलब फ्लोर के ऊपर बैठाया जाता था, बाकी सारे जो दोस्त थे उनसे पूरा दूर बैठाया जाता था, मतलब एक कोना में, फार अवे फ्रॉम ऑल। बाकी सारे स्टूडेंट्स एक जगह में बैठे होंगे, पर उनको, ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनको एक कोना में बैठा दिए होंगे। ही वॉज मेड, सॉरी सेकेंड, समटाइम्स बेट विदाउट एनी रीजन। कभी कभी उनका कुछ मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कुछ गलती भी नहीं की है, लेकिन उनको पिटाई होता था। पॉइंट 3, ही वॉज मेड टू स्वीप द क्लासरूम एंड द ग्राउंड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स बिकॉज ही वॉज फ्रॉम ए दलित फैमिली। उनको मतलब ज़बरदस्ती किया जाता था क्लासरूम को स्वीप करना, मतलब झाड़ू लगाना, प्लेग्राउंड साफ करना, तो ये सब ज़बरदस्ती किया जाता था, क्योंकि वो एक दलित फैमिली का थे। जो वाल्मीकि जी एक दलित फैमिली का थे, तो उनका जो लाइफ हिस्ट्री है वो लिखे हैं उस किताब में, जूथान किताब में। ये वन एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल लेंगे, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। ओके, दे आर फ्रॉम ए डिफरेंट रिलीजन, इस्लामिक। So here Mr. and Mrs. Ansari were looking to rent an apartment in the city। वो रहना चाहते थे रेंट में लेके, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी। दे हैड द मनी एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम। उनके पास बहुत सारा पैसा था, तो जो रेंट लेने वाले थे, जो घर में भाड़ा लेने वाले थे, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि उनको पैसा उनके पास था। पर they not being given a house on the pretext that they belong to another religion and eat meat। वो एक दूसरे रिलीजन के हैं, वो भी मतलब मीट खाते हैं, तो उसको लेके, ये रीजन को लेके लोग भाड़ा नहीं देते थे घर। दे आर नॉट रेडी टू चेंज देयर आइडेंटिटीज, इसके बावजूद भी दे डोंट वांट टू चेंज देयर आइडेंटिटी। ऐसे भी देखा गया है कि लोगों को ऐसे भी पैसा बहुत सारे होते हुए भी लोगों को डिस्क्रिमिनेटेड होना पड़ता था। So dear viewer, this is all about the portion. Once again we will meet in the next portion of this chapter. That is the last portion, that will be the last portion. So all of you take care of your studies. Thank you all.